اگر آپ روز نئے نئے ڈرامے اور کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے نیا ڈرامہ اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کا آغاز۔ کہانی ہماری مرکزی کردار مومن سے شروع ہوتا ہے، جو اپنے کئی موضوعوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور اپنے بارے میں بتاتی ہیں۔ پھر کہانی چند دن پیچھے چلی جاتی ہے، جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا۔ مومن کہتی ہیں، میں اس شہر کی مشہور بلیک ڈاکٹر ہوں۔ لوگوں کی نظر میں ایک بے رحم اور لالچی ڈاکٹر ہوں، جسے صرف پیسے سے مطلب ہے۔ کسی کے درد کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن مافیا کی دنیا میں لڑائی کے بعد میرا کلینک ہی سب سے محفوظ جگہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے کلینک میں ہر ایک کا استقبال ہے، چاہے وہ کسی بڑے گینگ کا مافیا ہو یا معمولی گنڈا، جبکہ عام لوگوں کے لیے ہاسپٹل جانا زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران وہ لالی پاپ کھاتے ہوئے ایک مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک بہت سے گارڈز ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں اور تمام مریضوں کا ہٹا کر راستہ صاف کرنے لگتے ہیں۔ پھر مافیا باس مسٹر جو کی انٹری ہوتی ہے، اس کی کمر پر گولی لگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ویل چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ اندر آتا ہے، مومن اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اسی وقت اس کا دایاں ہاتھ بلند آواز میں کہتا ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ اگر 3 منٹ میں سامنے نہ آیا تو میں ہاسپٹل کو تباہ کر دوں گا۔ یہ سن کر مومن آگے آتی ہے اور مسٹر جو کا زخم دیکھنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے چھونے لگتی ہے، ایک گارڈ اسے روک لیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے تھرڈ ماسٹر کو ہاتھ لگانے کی؟ جا کر اپنے سینئر ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مومن خاموشی سے مسٹر جو کے منہ سے سگریٹ نکال کر پھینک دیتی ہے اور اپنا لالی پاپ اس کے منہ میں رکھ دیتی ہے۔ پھر کہتی ہے، تھرڈ ماسٹر، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں سگریٹ پینا منع ہے۔ اس کے بعد وہ بدتمیزی کرنے والے گارڈ کو بھی سبق سکھا دیتی ہے۔ باقی گارڈ بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ سب کو ایک ایک کر کے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، یہ عوامی جگہ ہے، یہاں شور شرابہ مت کرو، خاموشی سے کھڑے رہو۔ نرس حیرت سے کہتی ہے، واہ ڈاکٹر مو، آج تو آپ بہت زبردست لگ رہی ہیں۔ مومن مسٹر جو کے قریب آ کر کہتی ہیں، مجھے تم جیسے مسئلے کھڑا کرنے والے لوگوں سے نفرت ہے۔ اگر علاج کروانا ہے تو اپنے کتوں کو خاموش رہنے کا حکم دو، ان کے بھونکنے سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ مسٹر جو کہتا ہے، اس کلینک کے سب سے اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ، تمہیں اچھا انعام ملے گا۔ مومن جواب دیتی ہے، اس شہر کی سب سے بہترین ڈاکٹر اس وقت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ مسٹر جو کہتا ہے، میں کسی خاتون ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا چاہتا، کسی مرد ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مومن جواب دیتی ہے، یہ کلینک میں چلاتی ہوں، اپنی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ مسٹر جو کہتا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تمام گینگلرز کے لیے کام کرنے والی مشہور بلیک مارکیٹ ڈاکٹر ایک لڑکی ہوگی۔ مومن مسکرا کر کہتی ہیں، اگر تمہیں پولیس سے ڈر نہیں لگتا تو 1 کلومیٹر دور بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں جا کر کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کروا لو۔ آخر کار مسٹر جو کو مجبوراً اسی سے علاج کروانا پڑتا ہے۔ علاج کے دوران مومن کہتی ہیں، چوٹ جسم کے کافی نیچے گہری ہے، اسی لیے مرد ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تھے نا، کیا تم شرما رہے ہو؟ یہ سن کر مسٹر جو کا دایاں ہاتھ غصے میں بندوق نکال لیتا ہے، مگر مومن جان بوجھ کر اس کے زخم پر زور سے دباؤ ڈال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر علاج نہیں کروانا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ دایاں ہاتھ کہتا ہے، تھرڈ ماسٹر، مجھے اس لڑکی پر شک ہو رہا ہے۔ مومن جواب دیتی ہے، جب اچھے خاصے پیسے مل رہے ہوں تو میری لغت میں شاید نام کا کوئی لفظ نہیں۔ مسٹر جو اپنے آدمی کو خاموش رہنے کا اشارہ دیتا ہے۔ مومن دل ہی دل میں سوچتی ہے، تھرڈ ماسٹر اس شہر کا سب سے طاقتور مافیا ہے، لوگ اسے اس کی دنیا کا یمراج کہتے ہیں۔ آخر کار آج میری اس سے ملاقات ہو ہی گئی۔ وہ چاقو اٹھاتی ہے، جیسے ہی اسے مار دے گی تو دایاں ہاتھ چیخ کر کہتا ہے، باس ہوشیار۔ اسی لمحے دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں، باہر جاؤ۔ مسٹر جو پوچھتا ہے، کیا تم ہر مریض کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہو؟ مومن جواب دیتی ہے، یہاں عام مریض نہیں آتے، جب وہ انجیکشن لگانے لگتے ہیں تو مسٹر جو کہتا ہے، بے ہوشی کی دوا کے بغیر علاج کرو۔ بات ختم ہونے سے پہلے ہی مومن اس کے جسم سے گولی نکال لیتی ہے۔ گولی نکالنے کے بعد مسٹر جو کہتا ہے، تم واقعی بہت بے رحم ہو۔ مومن جواب دیتی ہے، مجھے لگا تھا تمہیں درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا؟ پھر وہ اچانک اس کے منہ سے لالی پاپ نکال کر اسے بوسہ دے دیتا ہے۔ مومن حیران رہ جاتی ہے اور فوراً اسے زوردار تھپڑ مار دیتی ہے۔ مسٹر جو مسکرا کر کہتا ہے،
लॉली पॉप काफ़ी मीठा था, दर्द भी कुछ कम हो गया। वैसे तुम्हारा इलाज मुझे बहुत पसंद आया, क्यों ना मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी दौरान इसका दायाद आकर कहता है, बॉस गाड़ी तैयार है। मिस्टर जो व्हील चेयर पर बैठ जाता है और हुक्म देता है, इसे भी साथ ले चलो। इसका आदमी मोमिन को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमिन हकीकत में बेहोश नहीं होती। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिल में सोचती है, मिस्टर जो तुम्हारे ख्याल में मेरा भी खैर मुकदम है। अगले मंदिर में मिस्टर जो ऑस्ट्रेल से बैठा होता है। इसका दायाद रिपोर्ट देते हुए कहता है, बॉस मैंने मुकम्मल तहकीकात कर लिया है। मिस मो डॉक्टर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। लोगों का कहना है कि इसे सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन आसपास के इलाके में इसकी बहुत अच्छी शहरत भी है। और साहब इसे निहायत मेहरबान डॉक्टर कहते हैं। मिस्टर जो जवाब देता है, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में वाकई अच्छे लोग मौजूद हैं। फिर वो पूछता है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची? इसका आदमी जवाब देता है, पता चला कि काफ़ी फेटी आपके वालिद के साथ मिला हुआ है। यकीन नहीं आता कि अपने वालिद ही आपको रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जो सारी लहजे में कहता है, लगता है सफाई का वक्त आ गया है और मोमिन को नीचे ले आओ, इसकी पट्टी भी तब्दील करनी पड़ेगी। वो नीचे आकर पूछती है, तुमने मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? मैं तो सिर्फ इलाज करती हूँ और इसके बदले पैसे लेती हूँ। ऊपर से तुमने अभी तक मुझे अदायगी भी नहीं की और अब चाहती हो कि मैं अपनी जान खतरे में डाल दूँ। मिस्टर जो इसके हाथ खोलते हुए कहता है, बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं, मगर सिर्फ तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूँगा। वो कहती है, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो मैं ठीक है। मोहन जानबूझकर पट्टी बदलने के बहाने मिस्टर जो के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जो खामोश रहता है। इसी दौरान मोमिन को अपना बचपन याद आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नन्ही मोमिन एक अलमारी के अंदर छुपी हुई है, जबकि बाहर जवांग नामी शख्स इसकी वालिदा को मारते हुए कह रहा था, मैं हेनलैंड सोसाइटी के तीसरे यंग मास्टर के साथ तावन करना चाहता हूँ और तुम्हारी जान में तोहफे के तौर पर पेश करूँगा। इसके वालिद जवाब देते हैं, मुझे मारने के बाद भी तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। मगर जवान गुस्से में आकर इन्हें शदीद ज़ख्मी कर देता है। ये सब देखकर नन्ही मोमिन सदमे आ जाती है। हाल में वापस आकर वो दिल में कहती है, मैं अपने वालिद की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। गुस्से में वो मिस्टर जो के ज़ख्म पर ज़ोर से दबाव डाल देती है। मिस्टर जो पूछता है, क्या तुम मेरी तनख्वाह से खुश नहीं हो? वो जवाब देती है, जब तक पैसे सही मिलते रहेंगे मैं खुश रहूँगी। फिर वो ऐसे शराब पीते हुए और सिगरेट पीते देख कर कहती है, क्या थर्ड यंग मास्टर इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं? मिस्टर जो मुस्कुरा कर कहता है, बेफिक्र रहो, शैतान हज़ारों साल जीता है और इसलिए मैं भी लंबी ज़िंदगी गुजारूँगा। मोमन कहती हैं, परेशान ना हो, अभी आपके पास बहुत वक्त है। जब वो जाने लगती है तो मिस्टर जो इसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और पूछता है, क्या तुम कभी किसी मर्द के साथ सोई हो? वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थर्ड यंग मास्टर के साथ सोना तो प्राइवेट डॉक्टर बनकर पैसे कमाने से भी बेहतर होगा। मिस्टर जो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, चलो आज तुम्हें एक दिलचस्प तमाशा दिखाता हूँ। इसी दौरान राइट हैंड फेटी को ले आता है। फेटी कहता है, सुना है थर्ड यंग मास्टर की किसी लड़की को अपने साथ ले आए हैं। अगर चुआंग किसी की बेटी को पता चल गया तो वो ज़रूर हंगामा करेगी। राइट हैंड गुस्से से कहता है, तुम्हें इसकी फिक्र न करने की ज़रूरत नहीं। फेटी कहता है, जो आदमी आज तक किसी के सामने नहीं झुका वो आज एक लड़की के सामने झुक गया। इतने में मिस्टर जो अंदर जाता है। फेटी फ़ौरन खड़ा होकर इसका इस्तकबाल करने लगता है, मगर मिस्टर जो इसे ज़ोर से लात मार देता है और कहता है, मुझे लगता था मैं तुम्हें खुला पिला रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। फेटी घबरा कर कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं आपका वफादार हूँ। मिस्टर ये पूछता है, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मेरे वालिद ने तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसे दिए थे?
बेटी घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। इसी वक्त राइट हैंड बहुत सी तस्वीरें इसके सामने फेंक देता है और कहता है, ये तुम्हारी और उनकी खुफिया मुलाकातों की तस्वीरें हैं। बेटी घबरा कर कहता है, थर्ड मासा, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। वैसे जो डॉक्टर मुँह से पूछता है, तुम ऐसे इक़दार का इलाज कैसे करोगी? वो जवाब देती है, मैं सिर्फ बीमारी का इलाज करती हूँ, तुम्हारे असूल मुझे नहीं मालूम। वैसे जो इसका हाथ में चाकू देते हुए कहता है, फिर भी आज तुम्हें सर्जरी करनी होगी। हमारी बैंडलैंड सोसाइटी में गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं। ये कहकर वो खुद बेटी की तमाम उंगलियां काट देता है। ये मंजर देखकर मोमन खौफजदा होकर बाहर भाग जाती है। फिर वो चुपके से किसी को पैगाम भेजती है, अब मैं मिस्टर जो की ज़ाती डॉक्टर बनकर इसके साथ रह रही हूँ। अचानक पीछे से मिस्टर जो आकर कहता है, डॉक्टर जो ने के बावजूद तुम खून भी नहीं देख सकी। वो खून जवाब देते हैं, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, इन्हें मारना नहीं। मिस्टर जो इसके करीब आकर कहता है, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं, हम सब इस जन्म की शैतान है। मोमिन कहती है, मैं तुम्हारी साथी डॉक्टर हूँ, फिर तुम मुझसे ये सब क्यों करवाना चाहते हो? मिस्टर जो इसका चेहरा पकड़ कर कहता है, मुझे सिर्फ ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो लोगों को ठीक करे। वो पूछती है, तो क्या तुम मेरे हाथों लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? वो मुस्कुरा कर कहता है, तुम काफ़ी समझदार हो। फिर कहता है, आज रात मेरे साथ एक पार्टी में चलना, तुम्हें एक अच्छा तमाशा दिखाऊंगा। मोमन पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ साथी डॉक्टर बनकर जाऊंगी? मिस्टर जो बगैर कुछ कहे सिर्फ इसके होंठ साफ कर देता है। मोमन दिल में सोचते हैं, अगर मैं मिस्टर जो के साथ रही तो जवान तक पहुंचना आसान हो जाएगा और फिर मैं अपने वालिद की मौत का बदला ले सकूंगी। बाद में मिस्टर जो गुलतान में फूल सजा रहा होता है कि राइट हैंड आकर कहता है, बॉस, मिस मो के पास फ़ोन है और इसने चुपके से किसी को पैगाम भेजा है। मिस्टर जो मुस्कुरा कर कहता है, ये पागल लड़की रुकने वाली नहीं। राइट हैंड पूछता है, तो क्या इसे ख़त्म कर दूँ? मिस्टर जो जवाब देता है, नहीं, मैं इसे किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। चेयर इवेंट में इसे मारकर इल्ज़ाम जवान पर डालूंगा। राइट हैंड खुश होकर कहता है, बॉस, आप तो बहुत ज़हीन हैं, इस बहाने आप इसकी बेटी से शादी भी मनसूख कर देंगे, अपने वालिद को भी नाराज़ नहीं करेंगे और जवान से लड़ने का बेहतरीन मौका भी मिल जाएगा। एक देर से तीन शिकार, मिस्टर जो कहता है, लेकिन अफसोस सिर्फ मिस मुँह पर है। वो एक बेहतरीन डॉक्टर है, मगर माफिया से दुश्मनी करने की यही सज़ा होती है। अगले मंजर में मिस्टर जो और मोहन एक साथ पार्क में पहुंचते हैं। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। पार्क में मौजूद लोग इन्हें देखकर सरगोशी करने लगते हैं। एक शख्स कहता है, सुना है थार मास्टर की नई गर्लफ्रेंड है, अगर मिस जी को पता चल गया तो वो इसे ज़रूर मार डालेगी। दूसरा शख्स फौरन कहता है, खामोश रहो वरना हमारी गर्दन भी दाढ़ से अलग कर दी जाएगी। इसी वक्त एक शख्स मेरे जो से मिलने आता है और मोहन के बारे में पूछता है। मिस्टर जो जवाब देता है, ये मेरी साथी डॉक्टर है, इसने मेरी जान बचाई है और अब ये चाहती है कि मैं इससे शादी करके इसके एहसास चुका दूँ। वो शख्स हंसते हुए मोहन से हाथ मिलाना चाहता है, मगर मोहन नज़रअंदाज कर देती है। इतने में चुआंग अपनी बेटी सी जी के साथ पार्टी में दाखिल होता है। मोहन इसे देखकर दिल ही दिल में सोचती है कि चुआंग के पास अब सिर्फ चांदी ही नहीं बाकी रह गए हैं। इसी दौरान चुआंग भी मोमन को देख कर लेता है और गुस्से से कहता है, पहले मुझे लगा था ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन तुम वाकई मेरे इलाके में इस लड़की को साथ ले आए हो। तुमने जानबूझकर मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। इसकी बेटी सी जी कहती है, डैड, मैं इस लड़की को देखना भी नहीं चाहती। चुआंग जवाब देता है, जो भी करना बहुत साफ तरीके से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले मंजर में मोमन अकेली घूम रही होती है कि एक नौजवान जाइजू इसके पास आता है और कहता है, मिस मो, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मोमिन हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे? दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिर जाइजू कहता है, आज तुम वो काम करने जा रही हो जिसका तुमने डॉक्टर बनने के बाद बरसों इंतज़ार किया। मोमिन कहती है, जवांग ने मिस्टर जो के साथ मिलकर मेरे वालिद को कत्ल किया था, इससे बदला लेने के लिए मेरे पास यही रास्ता था। याई जो जवाब देता है, तुम्हारे साथ हाथ मिलाना मेरे लिए बेहतरीन फैसला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है, उम्मीद है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो इसे कमरे में नंबर बताता है। इसी वक्त मैसेजों को देखकर याई जो उसे सही से घूरता है जैसे वो भी इससे बदला लेना चाहता हो, मगर कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है।
मिस्टर यू पूछता है, किसी दोस्त से मुलाकात हुई? मोमिन झूठ बोलती है, बस से नशे में आदमी बदतमीज करने आया था, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही भाग गया। मिस्टर जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की अभी और मेहनत करनी चाहिए, चलो वापस चलते हैं। इसी दौरान सी जी आती है और कहती है, मिस्टर जो पार्टी शुरू हो गया है, आइए। मोमन सोचती है, तो ये जॉन की बेटी और मिस्टर जो की मंगेतर है। पार्टी में याई जो दिली दिल में कहता है, मिस्टर जो मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम्हारी महबूबा तुम्हें धोखा देगी। इधर से जी मिस्टर जो से डांस करने की इजाज़त मांगती है। मिस्टर जो कहता है, पहले मेरी गर्लफ्रेंड से इजाज़त लो। मोमन बेपरवाही से जवाब देती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जैसे वो जाने लगती है, सी जी अपनी मुलाजिमा को इशारा करती है, जो मोमन को नशावर मशरूब पिला देती है। मशरूब पीने के बाद मोमन को चक्कर आने लगते हैं। वो सी जी से मदद मांगती है, मगर सी जी मुस्कुरा कर कहती है, मैं तो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। वो मोमन को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन मोमन खुद को संभाल लेती है। इसी लम्हे इसकी नज़र मिस्टर योग के राइट हैंड पर पड़ती है, जिसने इस पर बंदूक तान रखी होती है। मोमन दिल में सोचती है, तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, मैंने अपने वालिद का बदला भी अभी तक नहीं लिया। इसी दौरान वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। सी जी खुश होकर जाने लगती है, मगर मोमन इसका हाथ पकड़ इसे भी रोक लेती है। सी जी खौफजदा होकर गार्ड्स को आवाज़ देती है। मोमन धीमी आवाज़ में कहती है, खामोश रहो, अगर मिस्टर जो को पता चल गया कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो क्या होगा। राइट हैंड फ़ौरन मिस्टर जो को इतला देता है, बॉस मिस मो ने सी जी को डाल बना लिया है। मिस्टर जो कहता है, इसे सब पता चल गया है, प्लान बदल दो। मोमन जाई जो की दी हुई बंदूक निकाल लेती है। जैसे मिस्टर जो कमरे में दाखिल होता है, वो इस पर बंदूक तान देती है। मिस्टर जो पुरसुकून लहजे में पूछता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मोमन जवाब देती है, तुम भी तो यही चाहते थे। मिस्टर जो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता कि एक आम से लड़की इस जुर्म की दुनिया में इतनी मशहूर कैसे हो गई, आखिर तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मोमन कहती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिलहाल तो मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ की एक मोहरा हूँ। मिस्टर जो मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन तुम तो मेरी हो। मोमन फ़ौरन जवाब देती है, फिर जब तुमने मुझे कत्ल करने का हुक्म दिया था, तब यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं तुम्हारी हूँ? मिस्टर जो हंसते हुए कहता है, तुम वाकई बहुत चालाक हो, मुझे लगा था तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। मोहन हैरान होकर पूछती है, किस बात का शुक्रिया? वो जवाब देता है, तुम्हारी जान बचाने का। फिर वो इसके साथ हाथ से बंदूक ले लेता है और इसे सोफे पर बिठा कर कहता है, मेरे आदमी ने सी जी पर बंदूक इसलिए तानी थी क्योंकि इसी ने तुम्हारे मशरूब में नशा मिलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मोहन पूछती है, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? मिस्टर जो संजीदगी से कहता है, जो भी मेरे साथ होता है, इसकी ज़िंदगी भी मैं तय करता हूँ और इसकी मौत भी मैं तय करता हूँ। वो बंदूक से गोली निकाल कर इसके चेहरे को छूता हुआ और कहता है, यहाँ कोई नहीं है। फिर वो इसे चूमने की कोशिश करता है, मगर मोहन इसे धक्का दे देती है। मिस्टर जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, किसने कहा था कि तुम मासूम हो? तुम तो शेरनी निकली। इसके बावजूद वो ज़बरदस्ती से चूमने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन पूरी तरह से मजामत करती रहती है। फिर मिस्टर जो पूछता है, तुमने मुझे गोली मारने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखाई? चला देती। मोहन जवाब देती है, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, फिर मैं तुम्हें क्यों मारती? मिस्टर जो मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन मुझे लगा था तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ एहसास हैं। मोहन कहती है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि थर्ड मास्टर मुझे अच्छी तनख्वाह देते हैं, वरना तुम्हारे बारे में सोचने की भी हिम्मत ना करती।